travel on land are called means of land transport. It is the most common way of traveling. It connects all parts of the country and is less expensive. Trains, carts, buses, motorcycles, cycles, cars, auto rickshaws, trucks, all are all means of land transport. So children, you will think that there are so many vehicles that which comes under means of land transport, and you can say that land transport is a little less land transport. So land transport is like this, very useful for a country, for a state, and for your town or city. So that is why the land transport is less expensive as well as very famous and very comfortable to all of us. So now this is clear to you all that there are so many vehicles comes under the means of land transport, like bus, auto rickshaws, car, motorcycle, bicycle, rickshaws, trucks, carts, trains, etc. So trains are of different types. यस चिल्ड्रन, आपने ट्रेन का नाम सुना होगा। यू आप सोचते हो कि ट्रेन्स तो ट्रेन होती है, इसमें डिफरेंट टाइप क्या होता है? तो नो, हियर यू आर रॉन्ग. देर आर so many types of trains also, like passenger trains and goods trains. So children, passenger trains में भी trains के कई different types हैं. like कोई जो ट्रेन होती है वो शॉर्ट डिस्टेंस पे ट्रैवल करती है, कुछ ट्रेन्स लॉन्ग डिस्टेंस के लिए जाती हैं, कुछ ट्रेन्स फुल्ली एसी होती हैं और कुछ जिनमें कुछ बॉगी एसी वाले होते हैं, कुछ स्लीपर होते हैं, कुछ जनरल बॉगीज होती हैं. सो इस तरह ट्रेन्स भी कई टाइप्स में बटे हुए हैं. और जो गुड्स ट्रेन्स होती हैं उनमें पैसेंजर ट्रैवल नहीं करते. इन गुड्स ट्रेन पैसेंजर्स डोंट ट्रैवल. They are more comfortable and can carry many people over long distances. Yes children, long distances का means ये भी है कि जैसे एक सिटी से दूसरे सिटी, ये भी कोई छोटी डिस्टेंस तो होती नहीं है. If you travel at least 100 kilometer, you have to travel 100 kilometer. Then what do you think? Is this less distance or long distance? So yes children, it is a long distance. So you will prefer to use train. Nowadays in big cities there are a network of underground trains called the metro. Yes, metro is also a type of train. So this train runs very fast. Did you know first passenger train in India ran between
Bombay and Thane in 1853. Children, remember this line always because it's a question of GK. First passenger train in India ran between Bombay and Thane in 1853. आपके इंडिया में जो पहली ट्रेन चली जिसमें पैसेंजर सवार थे वो कहाँ से कहाँ चली? तो वो चली बॉम्बे, जिसे आप आज मुंबई कहते हो, से ठाणे। कि जो ठाणे है ये भी महाराष्ट्र के अंदर ही आता है। तो ये जो ट्रेन जो है ये चली कहाँ चली, विच स्टेट में चली? तो ये चली महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में चली और कहाँ से कहाँ चली? तो बॉम्बे से ठाणे के बीच चली। Air transport. The quickest way to travel is by air. If you want to go children, if you want to go anywhere very quickly and if you need to go to any other country in 2 or 3 hours, so what you will use? Which means of transport you will use to go anywhere very quickly? You will always use air transport because air transport is the quickest way to travel. Aeroplanes can go very fast and carry hundreds of passengers at one time, but traveling by air is costly. Today, we have air services linking all the important cities in the country and in the world. Besides aeroplanes, we have hot air balloons, helicopters, and airships. The Wright brothers were the first to build an aeroplane. If someone asks to you that who built aeroplane, then what will be your answer? Your answer will be the Wright brothers were the first to build an aeroplane. इन्होंने ही सबसे पहले एरोप्लेन जैसी ही कुछ चीज़ बनाई थी जिसे बाद में एरोप्लेन नाम दिया गया, और जो इसका जो सारा क्रेडिट है वो किनको जाता है? द राइट ब्रदर्स को। ये 2 ब्रदर्स थे, इन्होंने ही इसका इन्वेंशन किया था। हियर द एरोप्लेन, द एयर ट्रांसपोर्ट इज कॉस्टली बट बिफोर सम टाइम ऐसा होता था कि इफ इन योर स्टेट देर इज नो इंटरनेशनल एयरपोर्ट, सो आपको वहाँ तक पहुँचना होता था जो आपके स्टेट से सबसे नज़दीक का एयरपोर्ट है। और हर सिटी में एयरपोर्ट पहले नहीं होते थे, अभी भी नहीं है, अभी भी कई जगहों पर नहीं है, लेकिन फिर भी जितनी भी आपकी कंट्री की इम्पोर्टेंट सिटीज़ हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्टेट्स, आई एम टॉकिंग अबाउट सिटीज़ जो कि स्टेट्स के अंदर होती हैं, तो जो भी इम्पोर्टेंट सिटीज़ हैं उन सभी में ये आजकल एयरपोर्ट होते हैं। और आपको उन एयरपोर्ट से किसी भी कंट्री में जाना या अपने ही कंट्री में ट्रैवल करना बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। तो आपको क्या याद रखना है इस चीज़ में, एयर ट्रांसपोर्ट में? क्विकेस्ट बट कॉस्टली वे टू ट्रैवल। एयर ट्रांसपोर्ट इज द क्विकेस्ट बट कॉस्टली वे टू ट्रैवल। Besides aeroplanes, we have hot air balloons, helicopters and airships. Children, एरोप्लेन्स के अलावा हॉट एयर बलून्स, हेलीकॉप्टर और एयरशिप्स जो हैं वो भी आपको एरोप्लेन का आनंद दे सकते हैं। नेम द इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑफ योर सिटी।
आपको अपनी सिटी का इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम बताना है, नाम सर्च करना है। वाटर ट्रांसपोर्ट, द ओल्डेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इज वाटर ट्रांसपोर्ट। यस चिल्ड्रन, the oldest means of transport. Water transport is the oldest means of transport. People used to travel from one place to another by using logs, small boats on water. सबसे पहले जब रोड ट्रांसपोर्ट नहीं थी, व्हील्स भी इन्वेंट नहीं हुआ था, उस समय क्या होता था? अर्ली ह्यूमंस क्या करते थे? अगर उन्हें नदी के इस छोर से उस किनारे पे जाना होता था तो व्हाट दे यूज़ लॉग्स, किसी लकड़ी के उस पे बैठ गए, लॉग्स पे बैठ गए। उस समय आई थिंक बोट्स भी नहीं बने होंगे, तो वो लॉग्स को यूज़ करते थे, या फिर उसको पकड़ के यहाँ से वहाँ इस साइड से उस साइड वो चले जाते थे। तो दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड दैट वाटर ट्रांसपोर्ट इज़ द ओल्डेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ऐसे ही नहीं कहा गया है कि वाटर ट्रांसपोर्ट सबसे पुराना है, क्योंकि जब हमारे पास मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इतने ज़्यादा नहीं थे तो सबसे पहला शुरुआती ट्रांसपोर्ट था वाटर ट्रांसपोर्ट। नाउअडेज पीपल यूज शिप्स, बोट्स, राफ्ट्स एंड स्टीमर्स। A large passenger ship can carry thousands of people. The cargo ships can transport grains, goods and oil all over the world. A submarine travels underwater. The Navy uses it to protect the seas. सबमरीन किस में यूज़ होता है? नेवी में यूज़ होता है। और ये कहाँ चलती है? सबमरीन चलती है अंडर वाटर, पानी के नीचे चलती है, और इसे नेवी यूज़ करती है, नेवी की फोर्स यूज़ करती है। क्यों यूज़ करती है? टू प्रोटेक्ट सीज। जो आपके कंट्री का सी है, जितना भी एरिया आपकी कंट्री के अंडर आता है सी का, ओशन का, उसके लिए कौन सी फोर्स वर्क करती है? तो नेवी वर्क करती है उसके लिए, और ये सबमरीन का यूज़ करके अपने जो एरिया है, ओशन और सी का एरिया है, उसको प्रोटेक्ट करती है। द कार्गो शिप्स, आपने गुड्स ट्रेन्स के बारे में सुन लिया ना, गुड्स ट्रेन्स। तो लाइक गुड्स ट्रेन्स देयर इज कार्गो शिप्स, एंड दिस कार्गो शिप, व्हाट डज इट? ट्रांसपोर्ट ग्रेन्स, गुड्स एंड ऑयल ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, थिंग्स को, गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए वी यूज कार्गो शिप्स। दिस इज लाइक गुड्स ट्रेन्स। गुड्स ट्रेन तो अंडर कंट्री चलती हैं, बट अंडर टू गो टू ट्रेवल टू डिफरेंट कंट्रीज, what you should use, what we have to use, what we can use? We can use cargo ships by sending many things from one to any other country or in all over the world. तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि आप वाटर ट्रांसपोर्ट के ज़रिए यहाँ जितने भी बच्चों, जितने भी हमारी कंट्री में इंपोर्ट होते हैं और हमारी कंट्री से एक्सपोर्ट होती हैं चीज़ें, वो सारी कार्गो शिप्स पे से ही ट्रांसपोर्ट होती हैं। कैसे? क्योंकि आप सभी जानते हैं कि ट्रेन्स जो होती है हर एक कंट्री में तक नहीं पहुंच सकती। आपकी कंट्री में जो ट्रेन चलती है वो क्या सारी कंट्रीज़ में जा सकती है? नहीं जा सकती। रशिया जा सकती है? नहीं जा सकती। या फिर यूरोप तक ट्रैवल कर सकती है? नो। तो अगर वो ट्रैवल नहीं कर सकती तो फिर हम अपना जो भी गुड्स हैं, जो भी हमारे ग्रेन्स हैं, चीज़ें हैं, उन सब सारे वस्तुओं को उन कंट्रीज़ तक कैसे पहुंचाएंगे? तो इसके लिए हमने क्या बनाया? कार्गो शिप्स बनाए। और कार्गो शिप्स क्या करता है? पूरे वर्ल्ड का, पूरे जो हमारा अर्थ है उसका एक तरह से वो इस कंट्री से जहाँ तक पहुँचना नामुमकिन है वहाँ से भी चीज़ें लाई जाती हैं और वहाँ तक चीज़ें पहुँचाई जाती हैं बाय दिस वाटर ट्रांसपोर्ट, एंड दिस इज कॉल्ड कार्गो शिप्स।
चलो, Nowadays people use ships, boats, rafts and steamers. ये तो आप जानते ही हो, ये सारी चीज़ें हम यूज़ करते हैं. शिप्स यूज़ करते हैं, बोट्स यूज़ करते हैं. एयरपोर्ट क्या होती है? जहाँ पे ऐसा प्लेस जहाँ पे एरोप्लेन या बाय एयर जो भी लोग आते हैं या थिंग्स आती हैं वो उतरती हैं, लोड एंड लोड होती हैं, उनको हम कहेंगे एयरपोर्ट. बट जो वाटर के थ्रू आते हैं उनको हम वाटर पोर्ट ना कह के केवल पोर्ट कहेंगे. A place where ships load and unload passengers and goods is called port. We will call it only port or a harbor. जहाँ पे भी ऐसा प्लेस जहाँ पे शिप्स आती हैं सामान लेके या फिर पैसेंजर को लेके और उन सबको उतारा जाता है. स्टॉपेज, एक तरह से आप कह सकते हो स्टॉपेज है उनका. और स्टॉपेज क्या, वहाँ पे ही उनको रुकना है, फिर वहाँ से आगे नहीं जाते वो, फिर वहाँ से वो वापस जा सकते हैं. या कभी कभी ऐसा होता है कि वो कहीं कहीं उनका स्टॉपेज भी होता है, जो वहाँ सामान उतार के फिर वो आगे चले जाते हैं, ऐसा भी होता है. तो इन सब चीज़ों को जहाँ भी उनका स्टॉपेज हो उसको कहेंगे हम पोर्ट या हार्बर. द नेक्स्ट टाइम यू विजिट अ रेलवे स्टेशन और बस स्टेशन और एन एयरपोर्ट, लुक अराउंड. अपार्ट फ्रॉम ट्रेवलर्स लाइक यू, there are many other people working there who help our trains, buses and aeroplanes run smoothly. Yes, children, I think you all know these things better, that there are so many peoples to help us are present on railway station, on airport, on bus station, to help us and to help our trains, buses and aeroplanes to run smoothly. If they will not work, it will be it will be very difficult to us to know about these transports. Like आप सोच के देखिए कि आपको इंक्वायरी करने के लिए कुछ भी ना हो और आपको जाना है बॉम्बे, यानी यू हैव टू गो टू मुंबई, बट यू वांट टू नो द टाइमिंग्स ऑफ द ट्रेन, बट एंड you already aware about the timing, but the train is late. How will you come to know? पहले क्या होता था चिल्ड्रन, आप इंक्वायरी ऑफिस में फ़ोन करके पूछते थे, जो भी चीज़ें आपको जाननी होती थी आप जानते थे. बट अब क्या हो रहा है, अब एक ऐप आता है, उस ऐप के थ्रू आप जान सकते हो कि आपकी ट्रेन कहाँ पे है और कितनी लेट है, ये आप जान सकते हो. IRCTC का एक ऐप आता है, उसके थ्रू आप जानोगे कि आपकी ट्रेन अभी कहाँ पे रुकी है और कितनी देर में आ जाएगी. ठीक है ना. तो इस तरीके से, बट उन ऐप्स को रन कौन करता है? वो ऐप्स खुद ब खुद तो रन नहीं होते, उनको अपडेट कौन करता है? उनको अपडेट करने के लिए भी कोई बैठा होता है कि हाँ अभी ट्रेन, आपकी ट्रेन कानपुर में रुकी हुई है, कानपुर से या फिर कानपुर से खुल चुकी है. तो इन चीज़ों को हर एक सेकंड, 5 मिनट पे अपडेट कौन करता है? कोई आदमी करता है बैठ के वहाँ पे. तो यही वे पीपल हैं जो हमें हेल्प करते हैं, हमारी सुविधा के लिए वे काम करते हैं. और वे जब काम नहीं करेंगे तो क्या होगा? हमारा नुकसान होगा, हमें कुछ समझ नहीं आएगा, हम टाइम पे पहुंच नहीं पाएंगे, या फिर ट्रेन पहले लेट होगी और हम पहले ही आ जाएंगे. So children, thank you very much. In our next class, और तब तक के लिए have a nice day. Thank you very much.